Hi guys, welcome back to Road to Cat 99. So we are starting with the set 3 of the Target 99 Plus series QA. I hope you will pose the question and solve it by yourself first and then you will watch the video solution. So let's start. पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं. The amount of job that A S K can individually do in a day harmonic for are in a harmonic work for 4 days and 9 days. I think something is missing in this question. Let me let me first check it. Just give me a minute. Okay, so this is the question that says the amount of job that A S K can individually do in a day are in harmonic progression. Okay, the amount of job that okay, let's say that A does A amount of work, S does S amount of work, K does K amount of work in one day. So basically, these are the efficiencies of A, S, and K, and these are in harmonic progression, right? So basically, you must know about this. That what does the harmonic progression mean? Right. So these are in harmonic progression. Harmonic progression, right? So what I can say is that 1 by A, 1 by S, and 1 by K should be in the AP, right? आपको ये प्रॉपर्टी पता है, नोट इट डाउन कि अगर कुछ HP में हो एंड उसका रिवर्स AP में होता है, राइट? कमल तो अगर HP में है ना, तो वो जितने दिन काम करते हैं, लेट्स से ए को एक्स डेज लगते हैं, एस को वाई डेज लगते हैं, के को जेड डेज लगते हैं, राइट? फिर वो भी किस में होंगे? वो भी एपी में होंगे. तो डायरेक्टली आई कैन एज्यूम दैट दीज आर एएस के आर द नंबर ऑफ डेज दैट they took to complete the job, right? So if these are the days, then and these will be in the AP, right? So I can say 2S would be equal to A plus K, right? These are the days. Kamal takes twice as much as Amal to do the same amount of job, right? Takes twice as much as Amal. ये टाइम का रेशियो है, तो इसका इनवर्स करूंगा तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 1/2, राइट? If Amal and Sunil work for 4 days and 9 days, right? Amal work for 4 days, तो इतना काम कर लेगा वो. 1/A is the efficiency, and Sunil work for 9 days. Okay. Kamal needs to work for 16 days. Kamal needs to work for 16 days to finish the remaining job. Then the number of days Sunil will take to finish the job working alone. Number of days Sunil will take to finish the job working alone. Okay, fine. देखो K/A क्या है हमारा? एफिशिएंसी का रेशियो, राइट? के की एफिशिएंसी क्या है? 1/K, और ए की एफिशिएंसी है 1/A, राइट? इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, बट ठीक है, समझाने के पर्पज से. सो A/K का मेरा क्या आ गया? 1/2, right? So what I can say is K is equal to 2A, right? मैं ये सबको रिमूव कर देता हूँ, ये सबको रिमूव कर देता हूँ. एक मेरे पास इक्वेशन ये है, एक ये है, और ये है टोटल वर्क, राइट? नंबर ऑफ डेज सुनील विल टेक टू फिनिश, तो हमारा आंसर क्या आएगा? टोटल वर्क बाय नंबर ऑफ डेज सुनील विल टेक टू फिनिश द जॉब वर्किंग अलोन, राइट? तो एस निकालना है बेसिकली, राइट? एस निकालना है. तो के को अगर मैं 2A रखूंगा तो 2S इज इक्वल टू 3A, राइट? राइट. तो अब अगर इफ आई एज्यूम कि A इज इक्वल टू 2, तो S आ जाएगा मेरा 3 एंड K आ जाएगा 4, राइट? ये मेरे पास आ गया. टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 4/2. 4/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 9/S, 3 प्लस 16/4. तो टोटल वर्क मेरा आ गया 9. 9 इज माई टोटल वर्क, राइट? देन द नंबर ऑफ डेज, नहीं, फिर यहां से आई थिंक वी आर मिसिंग समथिंग. या तो 3 आंसर आना चाहिए, बट इफ 3 इज नॉट द आंसर,
So I think we are missing something. So let's see. Total work 9. कुछ गलती की है. The amount of job that is can individually do are in a harmonic progression. Okay. तो नंबर ऑफ डेज इसमें आ जाएगा हमारा. ठीक है. कमल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अमल टू डू द सेम अमाउंट ऑफ जॉब. कमल टेक्स ट्वाइस. कमल का जो टेक्स ट्वाइस. सो 2a इज इक्वल टू क्या आएगा. एक सेकेंड कहाँ गया. हाँ. 2a इज इक्वल टू के हमारी एक इक्वेशन है. इफ अमर एंड सुनील वर्क फॉर 4 days and 9 days respectively. Okay. And Kamal needs to work for 16 days to finish the remaining job. Okay. Right. This is the total work. And I have equation 2s is equal to a plus k and k is equal to 2a. So 2s is equal to 3a. Fine. So मेरे पास आ गया. ठीक है. Let's not assume anything. Let's try with this thing. हमने यहाँ तक कर लिया था. यहाँ पे assume नहीं करते. Right. S को S की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ. 3a/2. S S is equal to 3a/2. सबको एक ही टर्म्स में और k को मैं 2a लिख सकता हूँ. राइट. तो 4 मेरा टोटल वर्क हो गया 4/a प्लस 9/3a/2 प्लस 16/2a. दिस इज माई टोटल वर्क. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ. अ, इस यहाँ से 3 कैंसल. यहाँ पे 8. तो 8. 3 to the 6 and 8 plus 6 14 plus 4 that is 18/a is my total work. Now I have to calculate 18/a. Right. Then the number of days Sunil will take to finish the job working alone. Number of days Sunil will take. ठीक है. हाँ तो बेसिकली आई हैव टू डू 18/a. तो टोटल वर्क है और सुनील की एफिशिएंसी क्या है 1/s. तो डिवाइड बाय 1/s. अगर 1/s से डिवाइड करूंगा तो 18s/a. तो 18/a इंटू 3a/2. सो यहाँ से 9. यहाँ से a. So my answer should be 27 days. 27 days, right? I think this is a simplistic approach. The only mistake that we did was we assumed some numbers that should not have been done, but without that, I think it's working perfectly fine, right? So let's see the next question. Anil invests 22,000 for 6 years in a certain scheme with 4% interest per annum, compounded half yearly. Okay. Sunil invests in the same scheme for 5 years and then reinvests the entire amount received at the end of 5 years for 1 year at 10% simple interest. If the amount received by both at the end of 6 years, then the initial investment made by Sunil. Okay. अब अगर अनिल की इन्वेस्टमेंट्स देखूं तो क्या हो जाएगी 22,000 इंटू 1.02 की पावर 12. राइट. एंड सुनील इन्वेस्ट इन द सेम स्कीम फॉर 5 years. ठीक है. सेम स्कीम फॉर द 5 years. लेट से उसने एक्स अमाउंट किया फॉर 5 years. तो ये मेरा हो जाएगा 10. एंड देन उसने 10% सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 11/10 पे इन्वेस्ट किया. राइट. नाउ आई हैव टू फाइंड एक्स. तो यहाँ से अगर ये कैंसिल होगा तो इस यहाँ पे बच जाएगा 1.02 का स्क्वायर. राइट. एंड यहाँ पे इसको अगर मैं लेके जाऊंगा तो ये 20,000 आ जाएगा. Basically 20,000 into 1.02 ka square that you can easily do on your calculator. Again, a very easy question. That is 20808 should be your answer. 2080 should be your answer, right? Now let's see this. Let's see be the circle x square plus y square plus this. Okay, okay. For this question, I believe you need a little conceptual help. That that is basically you should know what exactly is the equation of the circle and how you can calculate the radius. But let's see if that would be helpful or not. And I'll be the locus of the point of intersection of a pair of tangents to C with the angle. तो ऐसा कुछ सर्कल है. A pair of tangents. Okay, ऐसी कुछ tangents है. This angle is 60. Right. This is 90. Let's say this also will be 90. अगर मैं ऐसे करूंगा
तो ये एंगल मेरा 60 हो जाएगा, राइट, ये भी 60। लेट्स सी इफ दिस हेल्प्स और नॉट। देन पॉइंट एट विच एल टचेस द लाइन एक्स इज इक्वल टू 6। अच्छा, एल तो हमारा ये है, राइट। तो ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन आई बिलीव, है ना। ऐसा क्वेश्चन पहले आई डोंट थिंक आई हैव फेस, बट लेट्स सी, बिकॉज वी विल हैव सम थिंग्स अबाउट द सर्कल रेडियस और ये सब तो निकल जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट्स भी निकल जाएंगे, राइट। ओके, सो पहले इसको ट्राई करते हैं सर्कल की इक्वेशन देखने का, राइट। हमारी दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x। सो बेसिकली सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। उसको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं एक्स माइनस या एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर लिखूं तो मेरे पास एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, +4, राइट, -4 कर दूंगा। 10 प्लस वाई -3 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर, इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा +9, तो -9 -3 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 13 एंड 16, राइट, दैट इज 4 का स्क्वायर, राइट। इतना समझ आया सभी को? दिस विल बी 4 का स्क्वायर, राइट। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा मेरा सेंटर का मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 3, एंड मेरा रेडियस हो जाएगा 4। इतना समझ आया सभी को? आई होप यहाँ तक सिंपल हो, बस ये क्लिक करना चाहिए आपको, है ना। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक यू वुड फेस प्रॉब्लम, राइट। जस्ट गिव मी मिनट गाइस। हाँ, तो लेट्स सी ये कैसे होगा। ये अगर -2, 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है, एंड दिस इज 60, राइट। देन द पॉइंट एट विच L touches the line x is equal to 6. So basically हमें, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट। यार देखो काफी सिंपल लग रहा है मुझे। द रीजन बीइंग कि द रीजन इज दिस कि ये 4 है अगर, और ये हमें पता 30 है, राइट। 30 60, 30 60 90 के केस में क्या होता है, 1√3 and 2, राइट। अब अगर 30 वाला एंगल 4 है तो ये लेंथ आ जाएगी हमारी 90 वाले की 8। तो दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 4√3, राइट। एंड ठीक है, देखो x इज इक्वल टू 6 पे, तो 6 ही होगा। हाँ, हो गया ना, देखो देखो वो इधर इधर मूव कर रहा है ऐसे, राइट। अब कोई लाइन अगर इस पे कोई टच कर रही है तो यहाँ से तो गुजर रही होगी, तो x इज इक्वल टू 6 तो होगा ही, दैट इज गिवन इन एवरी ऑप्शन। एंड ऑल्सो वी कैन वेरीफाई दिस फैक्ट बाय हेयर कि अगर आप 8 ऐसे मूव कर रहे हैं तो -2 + 8 क्या हो जाएगा, 6, राइट। और हाइट तो सेम ही रहेगी, सो हाइट 3 ही रहेगी। तो बेसिकली द पॉइंट वाज कि तुम्हें ये फाइंड करना आना चाहिए, दैट इज -2, 3। इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये देख के भी आप सीधा आंसर लगा सकते हो, दैट इज योर आंसर शुड बी 3, राइट। इसमें देखते हैं क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। एक सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड है, ओके। ए बी सी डी, ए बी रेशियो सी डी इज 2:1, दैट इज इफ दिस इज 2A, दिस इज A, एंड बी सी is 5y. No, no. Okay, CD is A. My mistake. And let's with the eraser. Right.
दिस BC इज 5x, so this would be 4x. ऐसा कुछ फिगर है. If AC and BD intersect at point E, if AC and BD, this is line AC, this is line BD, they both intersect at point E. Again, seems a new question, right? Maybe you need to think a little bit, but I don't think this will get out of hand for sure, right? Let's see इसको कैसे solve करते हैं. First, you should pose such questions which are new, and then we will focus की how we can solve this. पोज करो इसको, 3-4 मिनट के लिए ट्राई करो, राइट. देन लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट. ओके, लेट्स स्टार्ट, राइट. देखो, पहली बात तो इसको सर्कल में दिया हुआ है, तो कुछ तो सर्कल की प्रॉपर्टी का यूज आएगा, और जो मुझे सिंपल सिंपल सा यूज दिख रहा है वो मुझे ये दिख रहा है. पहली बात तो ये देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है. ए ई बाय सी ई. ए ई, दैट इज ए ई बाय सी ई, ये फाइंड करना है, राइट. अब देखो, ये एंगल और ये एंगल सेम है. दिस एंगल and this angle is same. Why? Because the angle drawn on the circle from the same point, right? From CD to A or CD to B. ये सेम है. देन ये एंगल और ये एंगल भी सेम है, और ये एंगल और ये एंगल भी सेम है, राइट. तो ये, so I can say that ADE is similar to BCE, right? Do you all agree with this? चलो ठीक है. तो AD by BC, AD by BC is equal to AE by BE is equal to DE by CE. ये होगा. आई होप यू ऑल अग्री विद दिस ऑल्सो, है ना. एक बार डबल चेक कर लेते हैं. AE एंड ए ही है हमारे सिंगल के सामने वाला BS, ठीक है. अब AD बाई BC हमें पता है कितना है. यस, दिस इज 4/5. AE बाई BE पता है हमें कितना है. AE क्या है हमारा. AE बाई BE नहीं, BE पता है हमें, BE भी नहीं पता. DE पता है, DE भी नहीं पता, एंड CE भी नहीं पता. और हमें पूछा AE बाय CE. ओके, तो हमें AE बाय BE पता लग गया, 4/5 है. AE बाय BE, दिस इज लाइक 4M, दिस इज 5M, और DE क्या है हमारा, 4P. CE है 5P, राइट. अब हमें बेसिकली निकालना है. ठीक है, हमने एक ट्रायंगल यूज किया, हमारा थोड़ा बहुत यूज आया, थोड़ा बहुत यूज नहीं आया. AE हमारा 4M है, CE है हमारा 5P. बेसिकली हमें M/P निकालना है, राइट. नाउ वी विल फोकस टू सम अदर ट्रायंगल. यार यहाँ से निकल रहा नहीं है क्या. एक सेकेंड. चलो ठीक है. अब लेट्स से वी आर फोकसिंग ऑन दीज टू ट्रायंगल्स, दिस वन एंड दिस वन, राइट. इसमें देखो AEB का अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है, राइट, तो व्हाट आई कैन से इज AEB इज सिमिलर टू CED, क्योंकि एंगल DCE, BAE, और या इसको कहेंगे DEC. हाँ, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर रेशियो निकालते टाइम आपको बहुत आसानी होगी. लेट्स से AE बाई DE इज इक्वल टू EB बाई EC इज इक्वल टू AB बाई DC, राइट. आई होप दिस इज करेक्ट. तो अब AE बाई DE क्या होगा. AE कहाँ पे हमारा, 4M, एंड 4P इज इक्वल टू, दैट इज M/P.
इज इक्वल टू EB बाई EC क्या है 5M, दैट इज M बाई P, और AB बाई DC क्या है, AB कहाँ है, अच्छा 2A बाई DC, दैट इज A। तो M बाई P इज इक्वल टू 2, M बाई P इज इक्वल टू 2, हमें निकालना क्या था, AE 4M by 5P. So I can say 4 by 5 into 2, that is 8 by 5. So my answer should be 3, right? Again, a pretty easy question, but हाँ कुछ कुछ सोचना पड़ रहा है. And I think these all questions belong to geometry. तो ठीक है, let's see. In a right angle triangle ABC, right angle वाला हमेशा easy होता है, if I am not wrong. The altitude AB is 5 centimeter. Okay. The base is 12 and this should be 13 automatically. And this should be 90. P and Q are 2 points on BC such that areas of ABPBP. Okay, 2 points P and Q. Let's say this is P. Let's say this is Q. Areas of ABP. एक तो ये एरिया ABP का और ABQ का एरिया. अच्छा ठीक है, ABQ का एरिया एंड ABC का एरिया आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. So basically, this is first area, this complete is second area, and full is third area. These are in arithmetic progression, though that means twice of second area is equal to summation of area of first plus area of third. That is the property of when three figures are in arithmetic progression. तो मैं ये लिख सकता हूँ twice of area of second का, that is half into base क्या है इसका BQ, height आएगी हमारी 5, is equal to summation of half, तो कॉमन ले रहा हूँ, बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल दैट इज 5BP प्लस बेस इंटू हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल दैट इज 5 into 12. ये मैं पहले भी कट कर सकता था, बट अभी 5 को 5 से कट कर देता हूँ, है ना. तो मेरा क्या बचा, 2BQ इज इक्वल टू BP प्लस 12. मेरा ये, आप जो भी आपका रिजल्ट फाइनल हो उसको नोट करते जाओ, राइट, इवन इन द एग्जामिनेशन और इन द मॉक्स. दिस विल हेल्प यू लॉट टू फोकस on the question and also not to forget the important things. तो जैसे मेरा ये कहीं यूज आया या कहीं यहाँ भी यूज आ रहा है तो मैं कर लूंगा, राइट. ठीक है, लेट्स लेट्स डू इट. सो बेसिकली BQ मेरा क्या आएगा, अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो 6 प्लस BP/2 आएगा. चलो इसको इग्नोर करते हैं. इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट इज टोटल एरिया, दैट इज हाफ इंटू 60, दैट इज 30, is 1.5 times the area of triangle ABP, that is half into BP into 5, राइट. तो इसको क्या कर दूंगा, 5 3 15 एंड दिस इज 2. तो BP मेरा क्या आ गया, 8. जब BP मेरा 8 आ गया तो BQ मेरा क्या आ गया, 10, राइट. BP मेरा 8 आ गया, BQ मेरा 10 आ गया, तो मेरा ये 02 आ जाएगा इतना PQ, और ये टोटल अगर 12 है तो ये भी 02 आ जाएगा QC, राइट. देन द लेंथ ऑफ PQ की लेंथ क्या आएगी, 2. सिंपल, राइट, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं था. फॉर सम पॉजिटिव, हाँ ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे देखने में अजीब लग रहा है, बट आई डोंट थिंक दिस वुड बी दैट टफ, बट लेट्स सी. जस्ट पोज द क्वेश्चन एंड फर्स्ट राइट योरसेल्फ. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर सम पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट रियल नंबर XYZ, दैट इज पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट. पॉजिटिव तो हमेशा होगा बिकॉज वो रूट में है, डिस्टिंक्ट भी है, सो यू कांट एज्यूम दैट X इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू Z और समथिंग लाइक दैट, राइट. So if this is the arithmetic mean of this, right? So अगर ये arithmetic mean है तो मैं क्या कह सकता हूँ, twice of root y plus root z is equal to summation of 1 root x plus root z plus 1 by root x plus root y. ये कह सकता हूँ, right? Now let's try to solve something, or maybe if we can assume some values. देखो वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं, बट डिस्टिंक्ट है, अलग अलग वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेगी एंड माइट गेट अ लिटिल डिफिकल्ट. तो लेट्स डू इट सिंपली, कि नीचे मैं ले लेता हूँ रूट एक्स प्लस रूट जेड इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई.
राइट, और ऊपर ले लूंगा 2√x प्लस √y प्लस √z। ठीक है, आई थिंक यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। देन चलो एक बार ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। √x √y √z ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिंगुलर हैं, तो हमारी कुछ तो इस यहाँ से रिलेशनशिप आना चाहिए, है ना। लेट्स सी क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हो, या थोड़ा सा इफ यू लाइक वर्किंग ऑन सम इक्वेशंस तो यू कैन ट्राई दैट आउट, बट आई वुड जनरली प्रेफर कि अगर मैं इसको सोल्व करूं अच्छे से, लाइक 2, और इसको इधर ले जाऊं, तो मेरा आ जाएगा x प्लस √y(x) प्लस √z(x) प्लस √z(y) डिवाइडेड बाय √y प्लस √z इज इक्वल टू 2√x प्लस √y प्लस √z, राइट। एंड देन ओके ओके, चलो लेट्स सी। ठीक है, देखो, मुझे एक चीज थोड़ी थोड़ी दिख रही है कि अगर मैं √x को इधर ले जाऊं, ये वाले को 2√x को, तो ऊपर मेरा माइनस में आ जाएगा -2√xy माइनस 2√xz, जो मैं सिंपली ये और ये कैंसिल कर सकता हूँ। तो अगर इसको इधर ले जाऊंगा तो मेरा क्या बच जाएगा, सिंपली 2√zy बाय √y प्लस √z इज इक्वल टू √y प्लस √z, राइट। अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, so that I will get something simplified, that will be y plus z plus 2√zy, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड आ गया। दैट मीन्स ये सीरीज होनी चाहिए, x शुड बी अर्थमेटिक मीन, मतलब x बीच में होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। दिस शुड बी माई आंसर, राइट। इसको वैल्यूज लेके यार कर सकते थे, या वैल्यूज की जगह एक चीज और कर सकते थे इन द एग्जाम। इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस अप्रोच, यू कैन गो बाय द ऑप्शंस। लेट्स से फर्स्ट ऑप्शन से जाते, तो फर्स्ट ऑप्शन से आई विल एज्यूम कि 2√y इज इक्वल टू √x प्लस √z। तो फिर मैं वो ये चीज √x प्लस y z को यहाँ पे रिप्लेस कर देता, और अगर इक्वेशन सेट बैठती तो मैं करता, नहीं तो फिर आई हैव टू चेक सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, तो वो भी टायरिंग है, वो भी इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। तो अप टू यू, राइट। The number of all natural numbers up to 1000 with non-repeating digits. This is an interesting question. Uh, I request you to please pause the video and solve this. Right? चलो देखते हैं। इसमें देखो 1000 तक, अप टू 1000, राइट। सो इसमें आएगा सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, राइट। 1000 इसलिए नहीं आएगा बिकॉज 1000 में ऑलरेडी रिपीट्स हो रहे हैं डिजिट, तो वी विल फोकस ऑन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में देखो क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स बोल रखा है यहाँ पे, कितनी पॉसिबिलिटीज है, 1 से लेके 9 तक, तो ये हमें देगा 9। यहाँ पे कितनी आएगी, पहले में कितनी आ सकती है, देखो पहले में 9 पॉसिबिलिटीज आएगी डबल डिजिट नंबर में, और दूसरे में क्या आएगी, 9। वाई, एक तो जीरो बढ़ जाएगा, और जो यहाँ पे है वो नहीं आएगा, तो 10 में 10 आउट आउट ऑफ 10 नंबर्स, यहाँ पे ऑलरेडी नंबर आ गया वो नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे, तो यहाँ पे 81 पॉसिबिलिटीज आ गई। यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 8, तो 9 9 जा 81 और 8 64, राइट। आई थिंक 738 शुड बी द आंसर। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन वेरियस मॉक्स। तो अगर आप एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, देन बिलीव मी, I think the issue is from your side and not from the examiner's side, right? तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, उसको करना ही करना है, right? A lab experiment measures the number of organisms at eight. Again, a very famous question, very simple question, and this comes every year in every mock, right? So let's see. A lab experiment measures the number of organisms at 8 a.m. every day, starting with two organisms on the first day. The number of organisms on any day is equal to three more than twice the number on the previous day. Second में क्या होगा, twice of this plus three more, that is 2 to the 4 plus 3 7. Third में क्या होगा, twice plus 3 17.
फोर्थ में क्या होगा, ट्वाइस प्लस थ्री, दैट इज 37, राइट? If the number of organisms on the nth day exceeds 1 million, then the lowest possible value of n, right? Now this seems scary because इसने पूछ लिया 1 million. तो many of you might be thinking कि it will go up to infinite or it will go up to thousands or something like that. What is the correct formula or what is the correct way to do this type of question? Let's see कि कुछ series बन रही है, यानी 2 7 17 37, उसके अगला नंबर क्या आएगा, 77, राइट? अब देखिए इसका डिफरेंस 5 है, इसका 10 है, इसका 20 है, इसका 40 है। लेट्स फोकस। और इसका डिफरेंस 5 है, इसका 10 है, इसका 20 है, देन इसका 5 है, इसका 10 है। अच्छा, ठीक है ठीक है, गॉट इट। तो काफी ऊपर वाली सीरीज बन रही है ना? लेट्स थिंक इट इन सम अदर वे। ओके ओके ओके। तो ये अप्रोच तो आई डोंट थिंक वर्क करेगी, है ना? तो इसको इग्नोर करते हैं, लेट से कुछ फाइंड करते हैं अगर मिल रहा है। ये फर्स्ट डे है हमारा, ये सेकंड डे है, ये थर्ड डे है, ये फोर्थ डे है, ये फिफ्थ डे है, राइट? मुझे टू का पावर तो कुछ दिख रहा है, बट नॉट श्योर वो हेल्प करेगा या नहीं। थोड़ा देखते हैं। ये सेकंड, ये जैसे हमारा टू का पावर 2 + 3 और टू का पावर 3 - 1, ये हमारा टू का पावर 4 + 1 या टू का पावर 3 + 9। ओके, दिस इज टू का पावर 5 + 5। कांट सी द पैटर्न बट लेट्स सी। चलो इसको दोबारा देखते हैं, लेट्स सी कुछ और बनता है तो। एग्जाम में बस यही होता है, एग्जाम में इतना टाइम दे नहीं सकते हम एक क्वेश्चन को, काफी नर्वसनेस हो जाती है। बट इफ यू आर नॉट बीइंग नर्वस ड्यूरिंग द एग्जाम, देन आई थिंक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन क्रैक, राइट? बस इसमें देखो, थोड़ा सा देखो, कुछ तो पैटर्न बनेगा, बिकॉज 1 मिलियन तक कहा हुआ है, नॉट अ स्मॉल नंबर, इज इक्वल टू 3 टाइम, लेट्स से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। पहले दिन पे 2 था, दूसरे दिन पे क्या हुआ, इसका ट्वाइस +3, फिर क्या हुआ, इसका ट्वाइस, दैट इज 2³ +3 × 2 + 3, इसका ट्वाइस 2 की पावर 4 +3 × 2 की पावर 2 +3 × 2 + 3। तो मुझे मुझे एक चीज दिख रही है, आई विल लेट यू नो। 2 की पावर 5 +3 × 2 की पावर 3 +3 × 2 की पावर² +3 × 2 + 3, राइट? तो ऑन द nth डे क्या पैटर्न होगा, nth डे में क्या होगा, दैट इज 2 की पावर n +3 × 2 की पावर n - 2 +3 या 3 को अगर मैं कॉमन लूंगा तो मैं कह सकता हूं ऐसा होगा, 3 की पावर 2n - 2 +2 की पावर n - 3 +2 की पावर n - 4 टिल 1, राइट? ये होगा। तो हमारा nth डे पे अगर ये नंबर है, तो ये हमारी बन रही है एपी, राइट? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2n + 3, और एपी क्या क्या होगा, ए दैट इज 1 इंटू आर पावर n - 1। एन मेरा क्या आ जाएगा, टोटल मेरे हैं n - 2, राइट? तो दिस वुड बी n - 2। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग, राइट?
डे एन में मेरा आ जाएगा 2n+3 इंटू -1। जस्ट 1 सेकेंड, ये कितने टर्म्स हैं? हाँ, दिस इज n-1, राइट। तो दिस इज ऑन nth डे, राइट। Exceeds 1 million, then the lowest possible, so this should be greater than equal to, अच्छा exceeds 1 million है तो सिर्फ ग्रेटर देन होगा 10 पावर 6 से, राइट। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आई वुड गेट 2n प्लस, कुछ सिंप्लीफिकेशन तो होगा नहीं इसका, 3 × 2 n-1 -3 should be greater than 10 पावर 6, राइट। अब इसमें यू हैव सम चॉइस, इधर यू कैन assume some value of n and check on that. Otherwise, I think we can do some logarithm or some sort of things. So let's see how it fits in. अगर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? Let's say if I take 2n-1 common, 2 plus 3 minus 3, right? Basically, I want to convert this into 2 in the form of 2, right? So अगर ऐसे भी करूंगा मैं, तो this would be 2 power n plus 1 plus 2 power n minus 1 minus 3, right? एंड 10 पावर 6 क्या होता है हमारा? 5 × 2 की पावर 6। एंड आई थिंक बियॉन्ड दिस तो यू हैव टू डू विद बाय पुटिंग सम वैल्यूज, राइट। इसके बियॉन्ड आई थिंक आगे कुछ ब्रेक डाउन करना भी नहीं चाहिए, लेट्स इग्नोर दिस। यहाँ तक अगर आप आ गए हो, है ना, आफ्टर दिस just put some values. I mean, in the exam, I don't know whether it would be that easy, but if you can put some values and get some approximate number around that, then I think it would be easy. एक second though, let me pause this and check the answer. Okay, so the answer is 19, right? And I don't think it would be feasible to go this much through calculator. 2 की power 19, so I don't think you can ever find. So let's ignore this question for the time being. Or maybe if you can do that, तो 2 की power 19 अगर आ रहा है ना, तो एक चीज आप ये कर सकते हो कि let's say you know, right? 2 की power 10 is 1024, right? And 2 की power 8 तुम्हें पता है कितना है? कैलकुलेटर में इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 2 की पावर 18, राइट। तो वहां से हम चेक कर सकते हैं अगर मैन्युअली चेक करना है। बट टिल हेयर आई थिंक इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट एग्जाम में हो सकता है, एग्जाम में ये फॉर्म को डिड्यूस करना काफी लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। उस प्रेशर में आपको इतना सोचना डिफिकल्ट हो सकता है, तो यू कैन इग्नोर दिस क्वेश्चन। बट अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन आई थिंक that question number 21 was very easy. Again, this was a little bit on the moderate side. This was very easy. This was again a easy question. This was again a easy question. If you know the concept of circles, I hope you know it now. Again, this was one of the questions which was very easy in my opinion. If you have gone through SICA lectures, you can do it this question within few seconds. This question was again it involved a little bit of working, but it was for sure not on the moderate side. So I would consider it as easy to moderate.
yeah, that's it. I hope you are liking the series. If you are liking the series, please share and subscribe the channel and share the series with your friends. Thank you and have a very happy day. Okay.